Good evening, students. I am Mukesh Sajan, your commerce teacher, and I hope everybody is healthy and taking good care of their health. We will get through these tough times and survive the critical or unexpected challenges. So don't worry, my dear students, the hard time will pass. Remember, there is a green light on the other side of the red light. Okay, so we might just well use this time to get stronger than before. Yes, I know many students want to ask, sir, how we use this time. So my students, do lots of things. Improve your writing skills, increase reading speed, make your own time management, write stories, ideas, thoughts, yoga, meditation, various things. Just what do you want to do? I think it's enough to you. Okay, so refresh your mind and let's start business study. Chapter first, management and significance of management. Chapter first, nature and significance of management. So before starting the chapter, we discuss about a syllabus. Okay, so in class 12th, the syllabus are divided into two parts. Okay, the first part is principle and function of management, where our totals 8 chapter are there: nature and significance of management, principle of management, business environment, planning, organizing, staffing, directing, and controlling. Okay, so part first is total 50 marks are there, and second is a business, finance, and marketing, and the topic are there: finance management, finance marketing, marketing management, and consumer protection. Okay, so total are there, including 20 marks project work, total are there 50 marks also. So that means total 50 100 marks are paper are there. Okay, so let's we start the first chapter, nature and significance of management. Okay, before started the chapter, let we discuss about what do you meaning by management. Okay, so management is the art of getting things done through others. मैनेजमेंट एक आर्ट है. आर्ट मीन्स नॉट अ ड्राइंग. मैनेजमेंट एक कला है, एक तरीका है गेटिंग थिंग्स डन, अपने काम को पूरा करने के लिए थ्रू अदर्स, दूसरों की हेल्प लेकर, एंड विद अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप. फॉर्मली दैट मीन्स देर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप, वन इज फॉर्मल, अनदर इज इनफॉर्मल. फॉर्मल दैट मीन्स टोटली अपॉइंटेड द पर्सन. तो मैनेजमेंट का मतलब कि एक आर्ट है, एक गोल को कलेक्ट करने के लिए फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप को लेकर. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट का मतलब ये भी है कि हमें उसे प्रोसेस में लेके आना है, उसको डिजाइन करना है, मेंटेन करना है एक एनवायरनमेंट को, इन विच इंडिविजुअल मतलब जहाँ पर हम खुद होते हैं, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स, जहाँ पर हम ग्रुप में काम करते हैं, इफिशिएंटली एंड एकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स, जहाँ पे हमने जो एम सेलेक्ट किया है उसको पाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल इन अ क्रिकेट मैच. ओके, इन अ क्रिकेट मैच इफ वी चेज 300 रन्स, अगर हमें 300 रन को चेज करना है तो व्हाट इज द मैनेजमेंट पॉलिसी. कौन सबसे पहले विकेट सबसे पहले खेलने के लिए जाएगा, कितना हमें स्कोर रखना है, हमारा स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए, कितने हमारे पास प्लेयर हैं. ओके, सो दीज आर द मैनेजमेंट. लेट वी डिस्कस अदर डेफिनेशन आर देयर. मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, executing, controlling, perform to determine and accomplish the objective by the use of people and resources. मतलब कि मैनेजमेंट क्या मतलब है, जिसका प्लानिंग करना, यानी कि हमने जो प्लान किया है, जिसको हमने ऑर्गेनाइज किया और उसका एक्चुअल डेटा क्या निकल कर आता है और हमारा उसमें कंट्रोल कितना है. दीज आर कॉल्ड मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पस, एक मल्टीपर्पस है. ओके, वेदर अ स्कूल, वेदर अ कंपनी, वेदर अ फैमिली, we all know about the management is a play a important role in our life. Okay, to manage is to forecast मतलब दूर की देखना. ओके, मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिससे हमें पता चल जाता है कि आने वाले समय पे कंपनी को कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान होगा. टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, उसे कमांड करना, टू कोऑर्डिनेट एंड टू द कंट्रोल, और उसको कंट्रोल भी करना. ओके, सो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट दिया गया है. फर्स्ट इज प्रोसेस,
एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस। ओके, तो आपको जल्दी जल्दी से मीनिंग समझाऊंगा इसका। प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट लगातार चलता है और इसके फंक्शंस है। पहला प्लानिंग होती है, यानी किसी काम को करने के लिए सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, देन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज के अंदर क्या आता है कि हमें काम को कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है। स्टाफिंग मतलब किस किस हमें स्टाफ की जरूरत है। वी आर नीड इंजीनियर्स, हमें इंजीनियर की जरूरत है। वी आर नीड मैनेजर्स। ओके, डायरेक्टिंग मतलब दिशा दिखाना, डायरेक्शन देना, कि हमें उसको डायरेक्शन देना है कि आपको कौन कौन से वर्क करने हैं। और एट लास्ट कंट्रोलिंग, यानी कि इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करना है। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। अनदर थिंग इज effectiveness. Okay, there are the two types of efficiency and effectiveness. First of all, we discuss about effectiveness. Simple meaning, effectiveness means doing the right thing, यानी कि सही काम को करना। It means taking correct decision and action in every situation to achieve the target. मतलब किसी भी कंडीशन में टारगेट को अचीव करना। ओके, दैट इज कॉल्ड द सिंपल द इफेक्टिवनेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू आर द CEO ऑफ अ कंपनी एंड योर ऑनर आर सेड गेट द प्रॉफिट ऑफ ₹1,000 crore in this year. Okay, so in a simple way, your effectiveness is this: you did achieve the target. Okay, but another thing is, what do you mean by efficiency? In a simple meaning, efficiency means doing things right. Okay, effectiveness means right things and efficiency means things right, यानी कि चीजों को सही करके तरीके से करना। It means to ensure optimum utilization of resources to reduce cost, मतलब कि resources का इस तरीके से यूज करना कि उसकी कॉस्ट क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो एफिशिएंसी इज अ स्मार्ट वर्क। एफिशिएंसी क्या कहती है, हमारा स्मार्ट वर्क कहती है। ठीक है, और इफेक्टिवनेस मतलब जो हमें काम मिला हमने उसे उसी तरीके से कर दिया। आगे भी इसको अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस वे में चलता रहता है। तो मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस रिवॉल्व अराउंड 5 की फंक्शन। ओके, मैंने आपको बताया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जो हमारे अपकमिंग चैप्टर्स आएंगे तो वहाँ पे हम इसके बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूँ जल्दी से, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा। देयर आर द 3 पर्सन्स हैं यहाँ पर, नील, नितिन एंड मुकेश। ओके, हु ज्वाइन एज अ सुपरवाइजर इन गारमेंट फैक्ट्री। इन्होंने गारमेंट फैक्ट्री ज्वाइन करी है। तो देखते हैं तीनों को टारगेट क्या मिलता है। ऑल 3 हैव बीन गिवन द टारगेट ऑफ गेटिंग 1000 जीन्स। इनको 1000 जीन्स बनानी है इन 1 वीक एट द रेट ऑफ 500 पर पीस। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब 1000 जीन्स बनानी है और 1 वीक के अंदर बनानी है, तो 500 पर पीस। और उसकी जो कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट जो आएगी वो 500 पीस से ऊपर नहीं जाएगी। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने जो वर्क किया तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि नील ने जो टारगेट अचीव किया है, इसको आप रीडिंग करेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप एग्जांपल समझ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो नील था उसने जो वर्क किया था वो इफेक्टिवनेस किया था, और जो उसने जो एफिशिएंसी थी वो बिल्कुल यूज नहीं करी थी, क्योंकि उसने अपने जो टारगेट जो अपने उसको टारगेट जो दिया गया था 1000 जींस का, उसकी जो कॉस्ट थी वो 550 रुपीज पर पीस आई थी। तो दैट मीन्स उसको वो इफेक्टिवनेस तो है लेकिन उसके अंदर एफिशिएंसी नहीं है। सेकंड, नितिन ने रिसोर्सेज का अच्छे से यूज तो किया बट टारगेट को अचीव नहीं करा और उसने सिर्फ 950 जींस बनाई है। ओके, दैट मीन्स वो इफेक्टिवनेस तो है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। और टिल लास्ट मुकेश, इफेक्टिवनेस एंड ऑल्सो एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस भी था और एफिशिएंसी, क्योंकि उसने अपने टारगेट को अचीव करा, 1000 जीन्स को भी बनाया 1 डे के अंदर, और कॉस्ट भी जो है उसने अपनी अपनी जो है एफिशिएंसी में लेके आया था। ठीक है, तो चलिए आके देखते हैं सबसे व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है मैनेजमेंट के। देखो कि कोई भी वर्क करने स्टार्ट करने से पहले हम, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट अ कंपनी, अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये नहीं सोचेंगे कि मुझे कंपनी में कितना प्रॉफिट होगा। ओके, इट्स नॉट योर फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज दिस, पहला स्टेप आपका क्या होगा, पहला स्टेप आपका हमेशा रहेगा सर्वाइवल। यानी कि मैं कंपनी ओपन कर लूँ तो वो सर्वाइव कर जाए। ठीक है, मतलब मेरा रेंट वगैरह मैं उससे पे कर सकूँ और जो बेसिक नीड्स हैं। सेकंड, फिर आपकी थिंक होगी कि ठीक है सर्वाइवल मैं कर चुका हूँ तो थोड़ी सी मेरी ग्रोथ हो जाए, मेरी शॉप थोड़ी सी बढ़ जाए, या मेरे पास अभी 150 गुड्स आते थे तो 50 गुड्स और इंक्रीज हो जाए, और देन आपके पास आता है प्रॉफिट। दैट मीन्स कि अब आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाए। ओके, सेकंड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ओके, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग इन अ कंपनी, मैं किसी कंपनी में वर्क कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग इन अ स्कूल, तो फर्स्ट माय प्रायोरिटी इज दिस फेयर वेजेस एंड सैलरी। मुझे फेयर वेजेस मिले, यानी जो मैं काम कर रहा हूँ मुझे उसका
फेयर वेजेस मिले और उसको सैलरी मिले अच्छे से। गुड वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो मेरी एनवायरमेंट कंडीशन है वो अच्छी हो, मेरे सेफ्टी नीड्स का ध्यान रखा जाए। थर्ड इज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, यानी कि जो जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ तो मेरी वहाँ पे हमेशा ग्रोथ हो। सेकंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? यूज़ इको फ्रेंडली मेथड्स, हम जो यूज़ करें वो इको फ्रेंडली मेथड्स का यूज़ करें। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाए और अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो आप जब सब इसकी स्टडी कर लोगे, तो इसलिए मैं आपको स्लोली स्लोली लेके जा रहा हूँ। जब भी आप इसे अपनी वीडियो जब आप देखेंगे तो आप इसे पॉज करेंगे और रीडिंग करेंगे तो आपको ये एकदम से क्लियर समझ में आ जाएगा। तो मैंने अभी ये तीनों चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी है, सर्वाइवल, ग्रोथ करा है और अभी यहाँ पे प्रॉफिट भी मैंने डिस्कस किया। ओके, पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने भी डिस्कस किया जो खुद से रिलेटेड होता है, जो हमारा पर्सनली होता है। सोशल मतलब जो हम अपने एनवायरनमेंट को देते हैं। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब इसके फीचर्स क्या क्या हैं, यानी कि क्वालिटीज़ क्या क्या हैं। तो फर्स्ट थिंग इज गोल ओरिएंटेड, यानी कि जो भी मैं मैनेजमेंट जिसके लिए भी बना रहा हूँ वो गोल ओरिएंटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक क्रिकेट मैच पर अगर स्ट्रेटेजी बनाई है कि मुझे जीतना है, तो जो मेरा मेन पर्पस है वो क्या है? टू विन द मैच, यानी जीतना। तो गोल ओरिएंटेड, और उसी के लिए हम सब लोग काम करते हैं। ओके, पिरवैसे का मीन्स क्या होता है? सबके लिए। ओके, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट मेरे लिए या आपके लिए। नो, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। दैट मीन्स वेदर रनिंग स्कूल, कंपनी, कंट्री, तो सभी के लिए मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज मल्टी डायमेंशन। मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशन है, यानी हर जगह वर्क करेगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस है। कॉन्टिन्यूस, आपको भी बताया था कि इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाला है। ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे ग्रुप में काम होता है। ठीक है, एक कंपनी के अंदर आप सिर्फ अकेले पर्सन नहीं होते हैं जो वर्क करते हैं, आपके साथ और भी सब लोग होते हैं और सबको मिलकर एक डायरेक्शन में लेके जाना, दैट इज कॉल्ड द ग्रुप एक्टिविटी। इट्स अ डायनामिक फंक्शन, एक डायनामिक फंक्शन है। ठीक है, और मैनेजमेंट कभी भी दिखाई नहीं देता है, वो मतलब हमें महसूस नहीं होता है, वो दिखता नहीं है, मतलब हमें महसूस होता है यस कि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो बहुत इफेक्टिव। और मैनेजमेंट प्रॉफिट तभी कमाती है कंपनियां जब उसका मैनेजमेंट इफेक्टिव होता है। और इनटेंजिबल फोर्स मींस देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्स, वन इज टेंजिबल, अनदर इज इनटेंजिबल। ठीक है, तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिनको हम छू सकते हैं, और इनटेंजिबल जिन्हें छू नहीं सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक क्या है? इनटेंजिबल फोर्स है। ठीक है, उसका यहाँ पे आप पढ़ेंगे, देखो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड पर्पसफुल एक्टिविटी है। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट दे आर सेट इन क्लियर स्पेसिफिक एंड मिजरेबल टर्म्स। ये क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और मिजरेबल टर्म्स होनी चाहिए, जैसे कि एलिजेंट रिटेल्स प्लान्स टू स्टार्ट न्यू 10 आउटलेट इन इंडिया इन नेक्स्ट 3 months, मानी कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर। और सेकंड इज मैनेजमेंट इज परवेसिव मतलब यूनिवर्सल, यानी कि सभी के लिए, चाहे पॉलिटिशियन हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, कोई भी साइज हो। ठीक है, चाहे आपकी छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो या लार्ज कंपनी हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन मतलब देखिए आपको ये है वर्क, जहाँ पे हम लोग किसके साथ काम करते हैं, हमारा वर्क क्या है? मैनेजमेंट वर्क के साथ होता है, पीपल के साथ होता है और ऑपरेशंस के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलने वाला प्रोसेस है, कभी नहीं रुकने वाला। ये नहीं कि कंपनी में आज मैनेजमेंट हो गया, संडे की छुट्टी कर लो, फिर मंडे को मैनेजमेंट कर लो, ट्यूसडे को फिर देखा जाएगा। नो, मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस, दैट मीन्स एवरी सेकंड वर्किंग। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप में एक्टिविटी होती है यहाँ पे, जैसे भी एग्जांपल बताया था आपको कि एक कंपनी के अंदर कोई सिंगल मेंबर नहीं होता, हमेशा ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, तो सबके लिए क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। डायनामिक फंक्शन आपको डिस्कस कर लिया है, चाहे इकोनॉमिकल हो, लीगल फैक्टर्स हो, यहाँ पे सभी के लिए ये डायनामिक फंक्शन है। तो अब मैं इसको स्लोली स्लोली आप इसे सारे जब रीडिंग करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। अभी हमने डिस्कस किया था इंटेंजिबल फोर्स, अभी मैंने आपको बताया था, यानी हम इसे टच नहीं कर सकते हैं लेकिन हम इसका सिस्टमेटिक ऑर्डर देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, यानी कि जो हमने ग्रुप में गोल बनाया है ये इसको अचीव करता है। बहुत ही ज़्यादा आसान है समझने में। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट कंपनी में जाते हो तो आप इफेक्टिव होते हो, लेकिन धीरे धीरे कंपनी आपको इस अकॉर्डिंग बना देती है कि आप एफिशिएंसी यूज़ करते हैं, यानी कि यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव यूज, यानी कि आप बेस्ट अल्टरनेटिव यूज करते हो। सेकंड इज क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, आप डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो। हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो। ठीक है, यानी कि आप कंपनी के अंदर काम करो तो कंपनी को प्रॉफिट हो, जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपका पर्सनल भी ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सनल आपकी ग्रोथ होती है, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है। ओके, एंड हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी,
और वही हमारे सोशल कि हमारा जो है डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आप सभी ये पॉइंट पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। देन इसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। मैंने अभी जो हमने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, तो वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम जिसे भी स्टूडेंट्स को होती है तो वहाँ पे एकदम से सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये पढ़ेंगे, फिर जो हमारा एक से अच्छे से पढ़ेंगे, और उसकी फिर मैं केस स्टडी भी आपको जो आपका मंडे को जो होमवर्क जाने वाला है उसमें केस स्टडीज भी रहेंगी, आप उन्हें सॉल्व करिएगा। वहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उसमें सॉल्व कर, जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं, ओके। और फिर नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ओके। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड सेफ, ओके, एंड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक यू सो मच।